how do you stand in front of the public? Straight. कैसे straight? एकदम attention वाला position. Then normally, casually, loose attitude. Then attentively. Okay. So, okay, before we start, there are some rules for you. Right? First rule is you have to stand in the box. This box. Right? Whatever movement you have to show, you have to do within that. None of you should come out while you are speaking. Fine? You will be given a time limit of 2 minutes. After 2 minutes, the bell will ring. It shows the end of your speaking time. Right? You can't exceed the time. हाँ, 5-10 seconds चाहिए, that would be given. Not a problem. अगर आपको sum up करना है अपना topic, तो वो हो जाएगा. ठीक है? Anything else you want to ask? The chits are already given. The topics are already known to you. I hope you people बेटा are आप लोग prepared. इस वाले में नहीं, इसके आगे वाले में. Right? And nobody should talk while your fellow mates are performing. You have to cheer them up. You don't have to discourage them. Whatever they speak, do not demotivate them. Right? Cheer them up. Are the rules clear? Okay, now the listener will say some words to motivate you. So I will also stand in this box. Okay. Not too much gap. Small things which you need to keep in mind while you are speaking. एक ये बॉक्स लिए इम्पोर्टेंट है. कोई बच्चा यहाँ आके खड़ा हो जाएगा, कोई यहाँ आके खड़ा हो जाएगा. So you stand in a box. Okay. ऐसा नहीं कि हम थोड़ा बहुत बाहर नहीं जा सकते, लेकिन इसकी बाउंड्री में रहने की कोशिश करें. और if you move too much, अगर आप बहुत ज़्यादा मूव करते हैं, जैसे कि मैं बोलते बोलते बहुत ज़्यादा ऐसे घूम रहे, ठीक है, तो दिक्कत है. थोड़ा बहुत मूवमेंट अलाउ है, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा घूमते हैं तो इट बिकम्स डिफिकल्ट. एंड कंटेंट शुड बी गुड. मतलब आपको कोई कंटेंट के बारे में मालूम होना चाहिए. कोई टॉपिक दिया है तो आप उसको इंट्रोड्यूस कर दीजिए. एंड प्लीज़ मेंटेन आई कॉन्टैक्ट. ऐसे नहीं बस अर्जुन सर को देखते हुए बोल रहा हूँ, ठीक है, ऐसे सुप्रीम कोर्ट को देखते हुए बोल रहा हूँ, बिल्कुल सर को देखते हुए बोल रहा हूँ, ठीक है. सो योर आई शुड स्कैन द एंटायर ऑडियंस. और पीछे कोई बच्चा अगर वो वहाँ पर मस्ती भी कर रहा था, आपको मालूम पड़ जाना चाहिए, उसकी तरफ भी देखते हो. सो यू शुड स्कैन द एंटायर ऑडियंस. जितना आप लोगों की तरफ देखेंगे उतना इंगेजमेंट बढ़ेगा. मतलब मालूम पड़ा आपने उससे फर्स्ट शो की तरफ देख रहे हैं, लास्ट वाले शो को उनको लगा एसी एनवायरमेंट हो गया, लाइट बंद करो, सो जाओ. एंड द ऑडियंस रोल इज cheering, okay, because they have passed the first test, first trial उन्होंने पास कर लिया है. They are here on the stage, परफॉर्म कर रहे हैं. एंड कुछ जो सेलेक्टेड आज के परफॉर्मर्स होंगे, जल्दी अवार्डेड सर्टिफिकेट्स कुछ दिए जाएंगे. एंड वेरी फ्यू they will go to the social media also, the YouTube channel also. You never know, आपका तो जो आइडिया है, आपका एक स्पीच है, किसी को पसंद आ जाए, वायरल हो जाए, तो become overnight star. चलो, so let's not waste the time and बुलाते हैं and let's begin the show. And I hope we all are going to enjoy this show. Okay? So एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए. So we'll start with class 8th, right? So from class 8th, ZM2 batch, we have Sanidhya. Sanidhya's topic is importance of water.
respected teachers of my dear friends, my name is Sanidha Gautam, I'm in class 8th. My topic is importance of water. Water is essential for our day-to-day life. If we have not water, there is no life on the earth. The water helps in many ways. For example, that cleaning clothes, drinking water, and we have cooking food. And 96% of water is seawater, and only 4% of water is fresh water. Example, rivers, lakes, and ponds. And water helps to plants and animals also. Animals drink water and their purpose, and plants has water has main role in plants in the form of photosynthesis. Water is the main role, and sunlight also. So save water and save life. Okay, good. Next we have Rag, and his topic is how I like my hometown. Hello, good morning teachers and in charges and my dear friends. My name is Raj Joshi. I am from class 8, ZM2 batch. Now I am telling about my topic. My topic is how I like my hometown. And now I will introduce about my topic. Hometown. I like my hometown because because it is secure and safe. Because of more people, there are many people in my hometown. It was just like a society, and there were many playgrounds near my home. And I love to go to the basketball ground, and I also love basketball. I can't go to the campus of Resonance at this area, so I go to the station campus because it is near to me. And I love to study with my friend. He was also in Resonance, and I love to walk with my dog in my colony because it is big. And there were many trees and plants in my colony. And I love to play with my friend, and I study with my friend too, and we studied together because he was also in Resonance and I was also in Resonance. And we go to the Resonance station campus together. And there were many teachers in our station campus. And there were many hotels and shops near me. I love to bought toffees, chocolates, etc. And I go to the hotel for dinner, lunch with my parents. Thank you. Okay, so next we have Nishita Parashar, and her topic is lunchbox. Topic is if I could invent a new toy. Good morning to everyone. My name is Nishita Parashar from 8th class ZM2 batch. My topic is if I could invent a new toy. If I could invent a new toy, so first I will think about the need of the toy, like robot teacher, robot doctor, robot friend, and etc. The toy can talk to us and help in our studies. We can ask doubt to the toy and play with the toy and many more. So if I could invent the toy, so I will invent a robot teacher or doctor and many more. Thank you.
Next, we have Ashu Kumar Rathore, and his topic is My Dream Vacation. I think people are sleeping. Good morning to all. My topic is my favorite vacation. So my favorite vacation is summer vacation because in summer vacation we are enjoying our life. We are living in our homes. Our school is we are the vacations are going on. We are enjoying it by drinking cold drinks, etc. And we are playing for 3 to 4 hours, and then we are drinking nimbu pani, amras, etc. So, next we have Veer from class 8 ZM2 batch, and his topic is, let's listen to the topic. The topic is life without fuel. Good morning everyone, I am Veer of class 8 and today's topic is life without fuel. Life without fuel, there are many advantages. The advantages are that we are fit and healthy by walking and cycling, and there are disadvantages are that we can't travel long distance by walking or cycling. Thank you. So, this was the ZM2 batch. Now we have students from ZM1 batch. From ZM1 we have ZM1 Arunya. Our topic is the best thing about being sick is. The best thing about being sick is. Good morning everyone. Today I am going to speak on the best thing about being sick. So mostly in the rainy season we get sick and catch cold, and then we don't have to study first of all, and all we have to do is to lay in the bed. And but the best thing in this all is that we get our mother's care. We get to spend more time with her, and we get to play with her, and also thank you. Next we have Samriddhi. Is she here? She is in Sudoku. Okay. Twinkle, Parth, Ishan. Also Parth. Okay. The topic is forest. Sorry, yoga. Good morning everyone. Good morning everyone. My name is Partha Ajrit from class 8. Today's topic is yoga. Yoga is one of the most essential part of life which makes our body healthy and keep our mind peaceful. We should do yoga regularly because it makes our lifespan bigger. And it also makes our body flexible, healthy and strong. Not only physical abilities, yoga also boosts our mental abilities by making our mind more efficient to work with. We should do yoga regularly because it has different asanas to do for our particular body parts. And
I conclude that yoga is not only a way of exercise, it is an essential part because it is easy way to make our body perfect. Thank you. Have a nice day. That was wonderful. Okay, so next we have Himanshu, and his topic is If I Were a Train. Okay, it's written. Fine. If I were a tree, it's written here. Good morning to everyone present here. It's Manshu and my topic is If I Were a Tree. So let's start. Hello, I am a tree and you all are my very best friends. You give me water, soil and the most important, the best climatical conditions. And in return, I also give you many things like fruits and wood and many oxygen, medicines and many of the other things. You are too helpful for me, but you are destructive too. I am very depressed from all the humankind that I give you so many things and you gives me only this destruction. I gives you oxygen, you gives me only destruction. If all the trees died, your humankind will automatically disappear. So please plant more trees to protect your humankind. And lastly, I want to say that sadly, we are made for humans, but humans are not made for us. Thank you and have a good day. That was really a meaningful speech, and we all should learn from that. So next we have Ashutosh. So we'll start with WM1 batch till then, and from WM1 we first have Manas, and his topic is bikes. Good morning to one and all present here. Today, I, Manas Thakkar of class 7 WM1 batch, is here to present a speech on bike. Bike. Who doesn't know about bike? It is a two-wheeler vehicle. We use it to travel from place to place. Not even adults, even kids enjoy to ride bikes in games like GTA. And nowadays, many fast bikes like KTM, Hayabusa and etc. are available in the market. But they are out of range for common people. So for common people there are bikes like Hero, Honda and etc. After watching movies like Doom, people also wish to ride bike fast. But it's fiction and we have to ride it in real life. So always wear helmet and follow all the traffic routes. And when you drive rashly, think that someone is waiting for you at your home and you have to return back for him or her. Thank you for paying attention to me. That was really wonderful. Okay, so next we have Shabhi, and her topic is internet. A very good morning to one and all present here. I am Shivi Sharma from class 7th WM1 batch, and today I have got this golden opportunity to discuss with you about internet. Internet, a boon or a curse. Internet can be a boon for many people like teachers, like shopkeepers and even travelers. Internet on the other hand can be a curse too. How? Let me explain. Once there was a man who was riding his bike on Makar Sankranti day. He took out his phone and started searching something on internet. After a while, a thread came and cut his throat. As the thread was Chinese, he died. So, for his family, internet is a curse. On the other hand, internet is a curse for us too, as we spend time watching videos unnecessarily rather than playing or spending time on studying. So, we can give our assertion to make internet a boon rather than a curse. But, we will also need a help
from the present generation to create future for us, as we are the future generation who can create the internet as a boon, not a curse. Thank you for paying attention. Okay, next we have Taranya and his topic is my greatest fear. You can show your presence by giving them the motivation. Respected ma'am and my dear friends, a very good morning to all of you. And today I, Taranya Lakhani of class 7 WM1 batch will represent a speech in front of you on the topic my greatest fear. So, my greatest fear is being alone. One day I dreamt that my family was gone and I was alone in the world only by myself. But when I opened my eyes, I saw that my grandfather was saying that, Taranya, wake up, we are going to the hospital because you are becoming a big brother. 28th November 2019, I finally became a big brother. So, family gives us love, and if they are gone, no one will care about you in the whole world. So, listen to your family, greet them, respect them, and always pray that they live a long and happy life. Thank you very much. Next we have Rudra and his topic is temples. Audience, you are also going to get a chance to speak. So be attentive. How many of you want to speak? Okay, so we'll give you a chance. Good morning to all. My name is Surya Prakash Sinha, studying in class 7 WM1 batch, and the topic I got from the chat is temples. What are temples? Temple is a place where people worship their own gods. There are many religions and they are different, like Buddhism, Jainism, Hinduism, Christianity, etc. And different religions and the people in different religions worship different gods. For example, in Buddhism, people worship Gautam Buddha. In Jainism, people worship Mahavir. In Christianity, people worship Jesus Christ. And in Hinduism, as it is a big religion or vast religion, there are so many gods in Hinduism, like Mahadev, Brahma, and Krishna. So many gods are worshipped in the temples. And do you know, in medieval times, temples play an important role for people. The people not only worship gods in the temple. The priests taught Sanskrit here, and they worship gods, and their meetings were organized here, etc. So, temples play an important role, and thank you for listening me very seriously. Thank you. Naveen? Okay, so then we'll start with WM2 batch. The first is Aditya Joshi. And his topic is online shopping. Hello everyone, I am Aditya Joshi from class 7 WM2 batch, and my topic is online shopping. There are some demerits and merits of online shopping. The advantages are that in lockdown, people can't go out of their homes. So we can order supplies from online shopping applications like gifts, dresses and vegetables. And we can also send some gifts or vegetables to our grandparents or relatives. And the demerits are that sometimes we does not get our order in good condition. Sometimes the dress we order is not comfortable. The fruits we order are rotten.
the toys we order are broken. So this is, in short, I have to say that sometimes online shopping is very good and sometimes very bad. I hope the people who order things from online shopping applications may get their order in good condition. Thank you. Good. We have Ishan from ZM1 batch. His name was left out. And his topic is forest. ZM1 batch, Ishan. Hello everyone, my name is Ishan Pathak and I am from ZM1 Bank. My topic is forest. Think that you are walking in a forest with no trees. What you will feel? You will feel boring, you will feel sad, but now think you are walking in a forest with so many trees, so you will be happy. You will think that I am in a very good place. Now, what is the importance of trees? Trees gives us oxygen and many more things like Ayurvedic medicine and give us the and provide us shelter and air. These are very important for us. These are essential for life. So save trees and save our life. Thank you. From 7th, next we have Shashi Priya Naidu and her topic is electricity. Beta, please don't talk. Good morning everyone, my name is Shashi Priya Naidu and my topic is electricity. Electricity is light which we use which is used in house, streets, schools, hospitals, etc. Electricity has some benefits. We can study with electricity, we can use it for household chores, etc. But electricity has some problems too. The light turns off whenever if there is a problem. Whenever there is a problem, even if we are doing some work. So basically, electricity is precious in our life because we can't do anything without electricity. Thank you and have a nice day. Next, we have Amrit Sudoku. Okay, so who wants to speak? Who wants to speak? Come. So like it's like on the spot topic, and if you are able to do well, better pick up a chin. Pick up a chin. That's an interesting topic. Come. Hello everyone, my name is Yatharjan and I am from 7th class WM1 batch. And today we will talk about 0. It is a number that no one likes. It is a number that is the least number in positive numbers. We use 0 in everywhere, in exams, classes and many other things. And now 0 is a boon for every student in schools. It is a boon as we do not like 0 getting in exams
and many other ways. Zero is a boon for even every player, cricketers, footballers, etc. Zero is very useful, but sometimes it hurts us. It is also a number which helps us in many calculation, but all the way we do not like zero. Yeah, come here. Pick up a check. And after him, we'll start with 6th class. So 6th class students, be ready for that. Stop talking, boys. Stand up. Be straight. Good morning, everyone. Today we'll discuss about night sky. Night sky is the sky when it turns night time. It is dark. For some people it's scary, but for me it's beautiful. Night sky is filled with the light of all the stars, the moon. It's just simply beautiful to look at. It's what you may call a masterpiece of an artist. So, night sky basically helps us to look at and observe different type of stars. And frankly, I want to tell that I am a huge space nerd. So, I like staring at the stars and everything. So, night sky is truly a beautiful thing for me. Thank you. Good, very good. Next, we'll start with class 6, and first we have Shraddha. And her topic is dogs. I know it's easy, Anna. Many of you think that it's very easy. We should have gotten this topic. My topic is dog. Dog is my best friend. And whenever I go coaching, I always play with them. Boys. Dogs are the world most famous pet in this world. Everyone like to pet dogs. Dogs are very friendly too. Thank you. Okay. Next is Apurva. And her topic is the biggest birthday present. Come on. Piyush Raj, and his topic is family. Hi everyone, my name is Piyush Raj from class 6 WM1 batch, and today's my topic is family.
family is most important part of our life. An average family have 6 members, and if you do not have a family, no one care about you. I also have a family, so we care about them, and we care about them always. आवाज नहीं, आवाज नहीं। आवाज नहीं आनी चाहिए किसी की भी। किसी को बैठो ऑन टॉप। सर्च करो, गेट खोल देते हैं आप। मैम 2 मिनट स्टार्ट। Next we have Shubhank, and his topic is school. Hello everyone, my name is Shubham. My topic is school. School is very important in our life. We know things from school. If we did not go to school, we did not know anything and we have no knowledge. School is very important in our life. My previous school name is DA Public School. It has a big ground and has many teachers that took care of me and solved my all doubts. Thank you and have a nice day. Okay. Next, Pranay Verma. Pranay, and his topic is ice creams. Hello everyone. My topic is ice cream. We love ice cream. And we love ice cream in summer. But don't eat ice cream so much. It will cause cold, cavity, etc. And don't eat it in winter also. Thank you. Okay. From class 5th, we have Lavanya Sahu, and her topic is the most memorable day in my life. तो ये बातें ऑन टॉप। Good morning. My name is Lavanya Sahu from 5th UM. My topic is on the most memorable day of my life. My most memorable day of my life was when I was of 5 years old. In 2008, आवाज नहीं आनी चाहिए तो मत। we went to Jammu and Kashmir and with my joint family. We went for ice skating, hiking, horse riding, and went to see Himalayas. And then we went to Gulmohar and Dehradun. And there
hiking and exploring the forest. And then we came to the hotel and we ate the dinner and slept. Thank you. That was wonderful. Okay, so next we have Lakshya and her topic is bicycle. Good morning, my respected teachers and my dear friends. My name is Lakshya Sahu. I study in 5th class, Union batch. Today, my topic is on bicycle. One day I am riding my bicycle. I fell down and hurt. The bicycle is most important exercise. It gains weights. It is precious to me, my bicycle, because it is gifted by my grandparents and my parents. Its color is pink, white, blue, etc. And it feels in its wheel there are so many flowers. Thank you. That was good. How has been the session till now? What is the one thing which you observed between a good speaker and a bad speaker? There have been a good speakers here, which you enjoyed thoroughly, and there have been a not so good speaker. I will not say bad speakers, not so good speakers. What is the one differentiating factor? Nervousness. Nervousness. Fluency. Nervous, stage fear. And sometimes, typically what should happen in a public speaking, when you have just given a 2 minutes, आपका टॉपिक दिया गया है, सो ये होता है इंट्रोडक्शन। मान लीजिए आपको 2 मिनट दिया गया है एक टॉपिक को बोलने के लिए, तो 10% टाइम जो होता है उसका 2 मिनट का वो जाना चाहिए उसका इंट्रोडक्शन। फिर बीच में जो बॉडी होती है, मान लीजिए आपको बाइसिकल को डिफाइन किया है, बाइसिकल को बोलने के लिए बोला गया है, आपको पैड के ऊपर बोलने के लिए बोला गया है, आपको मोस्ट मेमोरेबल डेट के ऊपर बोलने के लिए बोला गया है। So first 10% of time should go to the introduction, then the rest 60 to 70% time should go and define explaining that. So body में जाना चाहिए और लास्ट का 10-15% टाइम जो होना चाहिए कंक्लूजन में जाना चाहिए। एंड मैं आपके बहुत फेवरेट्स हमारे पॉलिटिशियन रहे थे, उनके साथ ये नर्वसनेस है कि हर एक के साथ होता है, ये साथ में जाता है, चलता है। एंड उनका एक मुझे इंसिडेंट मालूम है, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग इंसिडेंट। वो जब बोला करते थे कि आप कुछ शेरवानी पहनते थे और ये जो बटन होता है ना, जो सबसे ऊपर होता है बटन, उसको बोलते हैं जीरो बटन। इसके बाद फर्स्ट बटन होता है सेकंड। जनरली हम जब शर्ट्स पहनते तो वी डोंट पुट द जीरो बटन, हम उसको पूरे जीरो बटन को लगाते थे। सो व्हाट वाज इंटरेस्टिंग विद हिम इज वो जब स्पीच देते थे, ही वाज अ वेरी ग्रेसफुल स्पीकर, इलोक्वेंट स्पीकर, वेल नॉन स्पीकर। लेकिन वो जब बोलते थे तो उनका ये लेफ्ट हैंड हमेशा ये फर्स्ट बटन पे जाता और उस बटन को घुमाते रहते। एंड इस तरह से उन्होंने बहुत सारी स्पीचेस गलत की, लेकिन वन डे इट सो हैपेंड
हैपेंड, जब वो स्पीच देने लगे उनका ये बटन टूट गया, उनका बटन टूट गया। एंड जब उनका बटन टूट गया, ही वाज नॉट एबल टू, है ना, मतलब वो उनका एक सबकॉन्शियस पार्ट का प्रॉब्लम हो गया। एंड उस दिन वो अपनी स्पीच में इतनी बार इतनी बार उन्होंने स्टैमरिंग करी, इतनी बार स्टम्बल किए, मतलब वो स्पीच इतनी फ्री फ्लो में नहीं जा पाई। तो समटाइम्स हम लोग जब अपनी पब्लिक स्पीकिंग कर रहे होते हैं, दिस इज योर फर्स्ट लेसन फॉर पब्लिक स्पीकिंग। मेरे ख्याल से आप में से बहुत से बच्चे पहली बार इतने लोगों के सामने स्टेज पे बोले होंगे। सो इट इज़ ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप पब्लिक स्पीच देके आए तो आपको वैसे ज़रूरी टीचर्स आपको फीडबैक देते हैं, लेकिन आप अपना फीडबैक पीयर से मुझको ज़रूर फीडबैक दें कि मेरे हाथ पाँव काँप तो नहीं रहते, मैं ऑडियंस में सबको देख रहा था नहीं देख रहा था, ऐसा तो नहीं मैं अपने दोस्त की तरफ देख के बोल रहा था। ये छोटी छोटी चीज़ है, बट इफ़ यू करेक्ट राइट नाउ, ठीक है ना, तो आप जब यहाँ से चले जाएंगे, कोई IIT में जाएगा, कोई मेडिकल में जाएगा, कोई डिफेंस में जाएगा, कोई लॉ में जाएगा, उसके बाद आप कॉर्पोरेट जॉब में जाएंगे, तो अपना बिजनेस शुरू करेंगे, बहुत बड़े बड़े काम करेंगे, लेकिन यू विल पिकअप सर्टेन हैबिट्स राइट नाउ। आपके कुछ हैबिट्स अभी से पिकअप हो जाएंगी और फिर उन हैबिट्स के साथ आप चलते जाएंगे। वो अच्छी हैबिट होगी तो काम करेगी, आपको थोड़ा सा कोई नेगेटिव हैबिट होगी, है ना, जैसे शेक करने की हैबिट होगी। कुछ लोग होते हैं जो पॉकेट में हाथ डाल के बोल रहे होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो ऐसे ऐसे हाथ, दो बच्चों भी देखे थे, हाथ हिल रहे थे उनके बहुत ज़्यादा ऐसे ऐसे, जिसकी हाथ कर रहे थे, हाथ हिल रहे थे। तो ये चीज़ें जिनको हमें अभी से ही वी नीड टू वर्क अपॉन इट। एंड वी आर वेरी फॉर्चुनेट, वी आर वेरी ग्रेटफुल। हमारे साथ में कौन है, हमारे साथ में कौन अभी आए हैं? आरके सर। तो एक बार जोरदार आरके सर के सर से आई थिंक ना सर इज आल्सो वेरी अमेजिंग स्पीकर एंड अमेजिंग सिंगर आल्सो। तो हमें एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिलेगी आज सर के साथ इंटरेक्शन करने की। एंड आई थिंक सर विल आल्सो शेयर हिज स्टोरी कि कैसे, बिकॉज यू आर नॉट बॉर्न एज ए स्पीकर, ठीक है, ये अपॉर्चुनिटी, चैलेंज, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जिसकी वजह से होता है। तो आइए सर को इन्वाइट करते हैं। मैंने सोचा नहीं था कि नीलेश सर मुझे बोलने का काम देंगे यहाँ पे, मेरे लिए भी एक्सटेम्पोर हो गया ये। अब ये जो आज का टॉपिक है यहाँ पे चल रहा है, तो बोलने के ऊपर ये, और जैसे अभी देख रहा था मैं, छोटे छोटे बच्चे आकर यहाँ पे बोल रहे थे। सबके सामने बोलने में बहुत करेज चाहिए होता है। पहली बात तो है कि स्टेज पे आके अगर आपके मुंह से कुछ भी शब्द निकल रहे हैं ना, वही अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है इस एज में, ठीक है ना। कुछ भी बोल रहे हो तो चाहे उसका कोई मेरिट है नहीं है, लेकिन सबके सामने यहाँ आके खड़े होके बोलना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं मेरे कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ ये, ठीक है ना। मैं भी आप लोगों को बताऊँगा कि मैं कितना डरता था बोलने से, है ना। तो इसलिए मेरे हिसाब से तो इस एज ग्रुप में कोई भी बच्चा अगर स्टेज पे आके खड़े होके कुछ भी बोल रहा है तो भी अपने आप में वो तारीफ के काबिल है, वो अपने आप में अचीवमेंट है। उसको मेरिट, डीमेरिट, अच्छा उससे उसको उस तरह से उसकी तुलना करने का कोई इस स्टेज पे वो नहीं है, लर्निंग स्टेज है। और बच्चे अभी इतने होशियार हो गए हैं और इतना उनका एक्सपोजर है चीज़ों के लिए, है ना। मतलब हम लोगों के टाइम पे तो ये सिचुएशन थी कि 12th क्लास तक भी कोई एक दो बच्चे ऐसे होते होंगे क्लास में जो थोड़ा बोलने में संकोच नहीं करते होंगे। ज़्यादातर बच्चे ऐसे होते थे जो बोलने के नाम पे डरते थे। मैं अपनी बात बताता हूँ, मैं शुरू से ही बहुत ही शर्मीले स्वभाव का रहा हूँ। स्कूल में मैं हमेशा अच्छे नंबर लाता था, पढ़ने के मामले में मैं तेज था, क्लास में फर्स्ट था,
लेकिन सबसे पीछे की सीट पे बैठता था। इसलिए बैठता था कि आगे की सीट पे बैठूंगा तो सर कभी भी मुझसे कुछ भी पूछ लेंगे, मैं कैसे बताऊंगा। मतलब इशू ये नहीं था कि वो चीज़ आती होगी नहीं आती होगी, इशू ये था कि यार उसको बताऊंगा कैसे मैं। तो बोलने के नाम पे बहुत डर लगता था। और इवन जैसे मान लीजिए सर ने सवाल दिया क्लास में, तो मैंने सवाल सोल्व कर लिया, उसका आंसर भी आ गया, तो मैंने कभी हाथ खड़े करके ये नहीं बताया कि सर मेरा आंसर क्या है। सर ने जब ये बोल दिया कि इस क्वेश्चन का आंसर ये है और मेरा मिलान भी हो गया आंसर से, मुझे ये पता लग गया कि सही है, उसके बाद भी अगर सर ये पूछते हैं कि किस किस का सही हुआ, तो भी मैंने कभी हाथ खड़ा नहीं किया कि मेरा सही हुआ है, क्योंकि डर ये था कि अगर इन्होंने मेरे से पूछ लिया तो मैं कैसे बोलूँगा। ये हमेशा बहुत डर रहा है बोलने का। और इस डर की वजह से क्या हुआ है मैं ये भी बताऊँगा। इस डर को दूर करने के लिए मेरे साथ क्या हुआ अभी थोड़ी देर में पता लगेगा। तो ये सबके बहुत सारे बच्चों के मन में होता है। और हम लोग जब, मैं एक बार की बात बताता हूँ, मैं 12th क्लास में था और मैं हमारे स्कूल का टॉपर था, तो मुझे वहाँ पे प्रेसिडेंट बना दिया गया। स्कूल में होता ना स्टूडेंट के जो स्टूडेंट यूनियन या जो भी होता है, यूनियन तो नहीं कहूँगा लेकिन हाँ हेड बॉय बना दो, या वहाँ प्रेसिडेंट बोलते थे उसको, स्टूडेंट प्रेसिडेंट इस टाइप से। अब प्रेसिडेंट बनाने के बाद क्या होता है कि अगर साल भर में कोई भी प्रोग्राम होगा स्कूल में, चाहे वो होते हैं ना फंक्शन होते हैं स्कूल में बहुत सारे, टीचर्स डे आता है और भी कई सारे डेज आते हैं, और फिर सारे लोगों को इकट्ठा करते हैं और मंच बनाते हैं, उस पर बिठाते हैं, टीचर्स भी बैठते हैं और टीचर्स के बगल में जो स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव एक प्रकार से, तो मुझे भी बिठा देते थे। अब मैं तो मतलब स्टेज पे जाने में डर लगता था, बैठने में कितना लगता होगा ये सोच सकते हो। और ये भी एक नियम है एक तरह से कि स्टेज पे जो भी लोग बैठे होते हैं ना, उन सबको भाषण देना पड़ता है, उनको कुछ ना कुछ करना पड़ता है, भाषण दो या कुछ भी करो, उनको बोलना पड़ता है। और जैसे ही बोलने का नंबर आता है ना, तो मेरे को बोलने के लिए बोलते थे। अब मैं क्या करता था बोलने में, तो क्योंकि बोलने में बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है, अगर आपने बोलने को इंटरेस्टिंग नहीं बनाया ना तो कोई नहीं सुनेगा आपकी बात। उसमें पूरा फ्लो होना चाहिए, एक सिस्टमेटिक चीज़ होनी चाहिए, कंटेंट होना चाहिए कि आप जो बोल रहे हो उसके अंदर बात में वजन होना चाहिए, ऐसे नहीं कि कुछ भी ऊपर-टांग बोले जा रहे हैं, और पूरा सिस्टमेटिक होना चाहिए वो। तो मैं क्या करता था, मुझे क्या शुरू से गानों का शौक रहा है, तो जिस चीज़ से रिलेटेड वो फंक्शन होता था, है ना, मान लीजिए टीचर्स डे है, तो मैं कुछ ऐसी चीज़ याद करके जाता था कि क्योंकि गाने में, कविता में, रिम में तो क्या सारी चीज़ रटी रटाई होती है, आपको जाके टेप रिकॉर्ड का बटन दबाना है बस एक तरह से, है ना, और वो चालू हो जाती है चीज़ें। तो मैं कोई ना कोई गाना याद करके जाता था, चाहे अगर जैसे जन्माष्टमी है तो श्री कृष्ण का भजन याद करके चले गए, गणेश चतुर्थी है तो गणेश जी का कुछ याद करके चले गए, और वो जा करके मैं शुरू करता था। और शुरू में जैसे स्टार्टिंग में बोलते हैं ना, अभी वो बच्चे ने बोला कि रिस्पेक्टेड टीचर्स, ये सब चीज़ें मेरे से वो भी नहीं बोली जाती थी उस टाइम पे। तो बस जैसे नंबर आया जाते ही गाना शुरू, और एंड में जय हिंद बोल के अपनी सीट पे बैठ जाता था। तो ये मतलब ऐसे अनेकों बच्चे हो सकते हैं, सेम स्थिति सेम सिचुएशन। इवन मैं IIT में भी गया ना, मैं IIT का एक किस्सा सुनाता हूँ लोगों को, बड़ा मज़ा आएगा। मेरे हॉस्टल वालों को पता था कि मैं अच्छा गाता हूँ, है ना, तो अच्छा, लेकिन मैं पब्लिक में कभी नहीं गाता था। मैं अपने रूम में बैठ के गाता था और आसपास के रूम वाले बच्चे सुनते थे, टेबल बजाता था और गाता था। उस समय कराओके वगैरह नहीं होते थे, तो सबको पता था कि मैं अच्छा गाता हूँ, इसलिए मेरा हॉस्टल में नाम भी ये था कि नाइटिंगेल ऑफ नर्मदा, नर्मदा हॉस्टल था हमारा, तो ये मेरा नाम उन्होंने रखा हुआ था। अब सारे हॉस्टल वालों के कंपटीशन होते हैं इसके गाने के, 12 हॉस्टल थे हमारे टाइम पे। वहाँ पे हर हॉस्टल से एक टीम बनती है गाने वालों की, एक सिंगर होता है और बाकी बच्चे जो बजाने वाले होते हैं, कोई गिटार बजाता है, कोई ड्रम बजाता है, ऐसे पूरी टीम बनती है। तो 12 टीमें थी, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस भी करी थी। अब सब वो जिस दिन कंपटीशन होना है उस दिन सबका नंबर आ गया, सबको वहाँ एक सेंट्रल लेक्चर थिएटर होता है जैसे ऑडिटोरियम है ना, ऐसे वहाँ पे और भी सुंदर ऑडिटोरियम था, उसके अंदर सब लोग चले गए। अब हमारा नंबर था 7वें नंबर पे। अब अनाउंसमेंट हुआ कि भाई 5वें नंबर वाले सीरियल नंबर 5 पे जो है वो आ जाए। जैसे ही 5 नंबर बोला ना, अब मुझे समझ में आ गया कि अब 7 भी आने वाला है। 1 2 3 तक तो चल रहा था, मेरा नॉर्मल था, जैसे ही 5वें वालों को बुलाया मैं अब नॉर्मल हो गया। ऐसे
जैसे अभी नीलेश सर बोल रहे हैं ना, पाँव कांपना अपना ये सब चीज़ें शुरू हो गई मेरी। मुझे इतना डर लगा कि मैं अपनी टीम वालों को एक जने को बोल के यार कि मैं अभी वाशरूम जा रहा हूँ, अभी आता हूँ, मैं वहाँ से भाग गया, हॉस्टल चला गया। मतलब एक बहुत बहादुरी वाली बात नहीं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि किस तरह से आप पढ़ने में अच्छे हो सकते हो लेकिन किसी और चीज़ में वीक हो सकते हो, और वो वीकनेस को आइडेंटिफाई करना और उसको सुधारना। मैं अभी बताऊंगा कि मैं अपनी वीकनेस जानता था और उसको सुधारने में क्या हुआ। मैं वहाँ से भाग गया। आप इमेजिन कर सकते हैं कि जब 7वीं टीम का नंबर आया होगा तो बजाने वाले सारे प्रेजेंटर सिंगर गायब है। अब वो क्या हुआ होगा मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि अगर उस समय ये मोबाइल वगैरह होते तो उस समय का सीन कहीं ना कहीं से वीडियो बन के आ गया होता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, ऐसा था ही नहीं। और बाद में आकर के उन लोगों ने मुझे बहुत सुनाया, पीटा नहीं, लेकिन उन्होंने खूब भला बुरा कहा मेरे को। मैंने उनको बोला, मैंने कहा यार मैं क्या, मुझे डर लगता है, तो मैं नहीं गया स्टेज पर, तो आ गया मैं यहाँ पे। तो ये स्टेज फियर मतलब जनरली ज़्यादातर लोगों को होता है। जैसे अभी नीलेश सर ने एक एग्जाम्पल भी लिया कि बहुत बड़े पॉलिटिशियन थे, तो वो भी अपने आप को मजबूत करने के लिए किसी न किसी चीज़ का सहारा लेते थे। अब क्या हुआ कि मुझे अपनी ये जो कमी थी ना, ये मुझे मालूम थी कि मेरे को ये बोलने की मेरे अंदर दिक्कत है। परीक्षा पास करवा लो, नंबर ले आओ, वो सब चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन बोलने में बड़ी दिक्कत है। तो मैंने IAS का एग्ज़ाम दिया था 94 में, और मुझे ये था कि परीक्षा तो मैं पास कर लूँगा लेकिन मैं इंटरव्यू पास नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि इंटरव्यू में बातचीत करेंगे, पूछेंगे, सवाल जवाब करेंगे, तो मुझे आती हुई चीज़ भी भूल जाऊँगा मैं, ठीक है। तो फिर मैंने सोचा कि यार क्या करें अपन जिससे कि अपना ये डर निकले, ये जो बोलने वाला डर है ना, इसको निकालने के लिए मैं दिमाग लगाया मैंने कि क्या करना चाहिए जिससे ये डर निकले। तो मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया। ये जो मैं टीचर बनाऊँ ना, IIT से करने के बाद टीचर बनना, पहली बात तो उस ज़माने में आज से 27 साल पहले मेरे 27 ईयर्स कंप्लीट हो गए 5 मई, अभी 5 मई निकला ना, 27 ईयर्स कंप्लीटेड। 95 में शुरू किया था मैंने, अभी 28वां साल चल रहा है। तो वो टीचर में जो ट्रांसफॉर्मेशन है, टीचर बनने के पीछे जो बड़ा रीज़न है ना, वो रीज़न था कि वो IAS एग्ज़ाम के बाद इंटरव्यू होता है, उस इंटरव्यू की तैयारी कैसे होनी चाहिए, बोलने का डर कैसे निकालना चाहिए, उस बोलने के डर को निकालने के लिए ही मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया कि पढ़ाएंगे तो बोलना आएगा। और उसमें भी बच्चों को, जैसे मेरे गांव में मैं रहता था तो दिन में बच्चे जाते थे स्कूल पढ़ने, और शाम के टाइम पे मैं उनको बिठा के पढ़ाता था। तो जब 2-4 बच्चे बैठे हुए तो धीरे धीरे उनको पढ़ाना शुरू किया, फिर 20-25 बच्चों के साथ पढ़ाना शुरू किया। इस तरह से वो डर निकालने के लिए। पर्पस क्या था? टीचर बनना नहीं था, पर्पस था IAS का इंटरव्यू क्लियर करना। और बाद में IAS बन भी गए तो भी पब्लिक डिलीट होती है, लोगों के सामने बोलना होता है। तो उस डर को निकालने के लिए मेरा पूरा ही कैरियर चेंज हो गया। और वो टीचिंग करते करते मुझे इतना अच्छा लगा कि मुझे लगा कि टीचिंग एंड माई सेल्फ आर मेड फॉर ईच अदर। ये मेरे अंदर फीलिंग आई, और वो जो फिर आगे तो फिर सब लोग जानते ही हैं। मैं 6 साल बंसल क्लासेस में पढ़ाया, फिर 2001 में रेजोनेंस बना, और अभी 20 सालों में पता नहीं शायद कितने बच्चों को मालूम है, लेकिन अब तक लगभग 50,000 बच्चे IIT में सेलेक्ट हो चुके हैं रेजोनेंस से पढ़ के। 50,000 एग्जैक्ट नंबर तो है 48,326 ऐसे कुछ है, लेकिन 2018 में IIT का पूरा रिजल्ट, सारे बच्चों का रिजल्ट नहीं देख पाए थे हम, क्योंकि उन्होंने 4 चीज़ें पूछी थी रिजल्ट देखने के लिए, और उतनी चीज़ें हमारे पास थी नहीं, तो सारे बच्चों का रिजल्ट देख नहीं पाए। पर मैं मानता हूँ कि 50,000 की जो संख्या कम पड़ रही है, उतने बच्चे उसमें सेलेक्ट हुए होंगे, तो लगभग 50,000 बच्चे। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये सिर्फ वो बोलने के डर को निकालना, इससे मेरा एक तरह से पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। अभी नीलेश सर ने कहा कि भाई सर बहुत अच्छे स्पीकर है, मैं बिल्कुल अच्छा स्पीकर नहीं हूँ। मैं तो क्या है कि जो फैक्ट होते हैं वो बोलता हूँ, और जो सिचुएशन से मैं गुजर रहा होता हूँ, जो अपने आसपास देखता हूँ, उन्हीं चीज़ों के बारे में बोलता हूँ बस। और चूँकि टीचर हूँ, टीचर होता है तो बहुत सिस्टमेटिक होता है चीज़ें बोलने में, तो वो एक प्रॉपर फ्लो होता है उसका, उस फ्लो के साथ मैं बोलता हूँ, और जो भी बोलता हूँ एक तरह से दिल से बोलता हूँ। उसमें कोई लाग लपेट इधर उधर का कोई सोचना कुछ नहीं होता है, सब चीज़ें इंग्लिश में बोलूँगा तो मैं कम से कम 10-20 बार अटकूँगा। हिंदी में थोड़ा फ्लुएंसी रहती है, लेकिन मेरे पास कुछ शब्दों का बहुत बड़ा माया जाल नहीं है कि मैं ऐसे ऐसे शब्द फेंकूँ भी जो एकदम वैसे लगे, क्योंकि मेरी हिंदी बहुत ख़राब रही। हिंदी की वजह से मैं 10th में मेरिट में आने से रह गया था,
10th में मेरी 26वीं मेरिट थी राजस्थान बोर्ड में, हिंदी और सामाजिक ज्ञान, सोशल स्टडीज होती है, इनकी वजह से मैं पिछड़ गया। नहीं तो पीसीएम के टोटल में हमारे टाइम 10th में पीसीएम था और 9-10 का सिलेबस आता था, तो पीसीएम के टोटल में मैं राजस्थान में टॉप 5 में था। बट वो हिंदी और सोशल स्टडी इन्होंने मेरे को लूट लिया एक तरह से। तो मेरी वोकेबुलरी वो सब चीज़ें बहुत ही ख़राब है। बहुत नॉर्मल शब्द बोलता हूँ मैं, कभी अपने स्टाफ को भी ईमेल वगैरह करता हूँ न्यू ईयर पे, दिवाली पे, इन पे, तो उसमें भी बहुत ही सिंपल शब्द होते हैं, बहुत सामान्य शब्द होते हैं। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। अच्छा, ये इसकी ज़रूरत क्या है, पब्लिक स्पीकिंग की ज़रूरत क्या है, मतलब क्यों आपको पब्लिक स्पीकिंग आनी चाहिए? सब पब्लिक स्पीकिंग का मतलब ये नहीं कि आपको कोई चुनाव लड़ना है, वहाँ जाके नेताओं की तरह से भाषण देना है। पब्लिक स्पीकिंग का मतलब इट इज़ ए स्पीकिंग। आपको अगर किसी एक जने से ही बात करनी है ना, तो बात करनी है, दो से बात करनी तो भी बात करनी है। जनरली एक दो के सामने बात करने में व्यक्ति कंफर्टेबल होता है, लेकिन ज़्यादा के सामने बात करने में, स्टेज पे आके बात करने में अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। अभी मैं 1-2 बच्चों, तो इसकी ज़रूरत तो ये है कि आप इसको अवॉइड भी कर सकते हो। भले ही जब तक आपका स्टूडेंट लाइफ में कैरियर है, इस स्टूडेंट लाइफ में भी आपको कई बार ऐसे मौके आएंगे जो बोलना पड़ेगा सबके सामने, है ना। और बाद में तो डेफिनेटली आएंगे, चाहे आप किसी भी कैरियर में जाओ, चाहे आप इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, IAS बनो, आर्मी में जाओ, किसी में भी जाओ, अल्टीमेटली आपका रोल पहले लिमिटेड होता है, उसके बाद बढ़ता जाता है। आपको 10 जनों की टीम, 50 जनों की टीम, 100 जनों की टीम, 1000 लोगों की टीम को लीड करना होता है। जब भी आप लीडर हो तो आपको अपनी टीम को लीड करना है, उनको बार बार एड्रेस भी करना है। तो ये इस चीज़ को अवॉइड नहीं किया। मैंने सोचा था उस टाइम पे कि यार ये क्या ज़रूरत पड़ेगी इसकी, लेकिन जो मेरी सबसे बड़ी कमजोरी थी ना, वही एक तरह से उसने मुझे मेरा पूरा ट्रांसफॉर्मेशन किया। और एक तरह से मैं चाहूँ तो दिन भर बोल सकता हूँ, हालांकि मिसलेनियस चीज़ों पे नहीं, जो मैं काम करता हूँ उसके बारे में, है ना। मुझे बाकी चीज़ों अगर मुझे कुछ बोल दे कि आप इस टॉपिक पे बोलो, तो शायद मैं नहीं बोल पाऊँगा। जो मैं जानता हूँ उसके बारे में मैं एनफ अच्छी तरह से बोल सकता हूँ और अच्छी तरह समझा सकता हूँ चीज़ों को। तो बोलने के बारे में 2-4 चीज़ें मैं बताना चाहूँगा कि भाई सब, क्योंकि ये सब्जेक्ट एक तरह से ट्रेनिंग ही है, तो इसमें एक तो जब भी बोलो, एक तो याद, ये कागजों में लिख के बोलते हैं ना, तो कई बार फ्लो नहीं आता है। नेचुरल बोलो, है ना। बोलने से पहले, अभी यहाँ तो अचानक सब्जेक्ट मिल रहा है, लेकिन कभी सब्जेक्ट किसी चीज़ पे बोलना हो तो उसके अच्छे से पॉइंट बना के पहले से उसकी रिसर्च करो, उसके डेटा इकट्ठा करो। और कभी भी कोई बात करनी हो, वो इन्फ्लुएंशियल तब होती है जब उसके अंदर एग्जाम्पल होते हैं, डेटा होता है, संख्या होती है। जैसे अभी मैंने कहा 50,000 बच्चे आइटम सेलेक्ट हो गए, इस तरह संख्या होती है ना, तब लगता है कि हाँ भाई इसके बात में दम। और बोलते समय सामने देख के बोलो। जैसे अभी एक बच्ची बोल रही थी तो वो नीचे देख के बोल रही थी, वो एक अभी तो ठीक है, लेकिन फ्यूचर में अच्छा स्पीकर बनना है तो सामने देख के बोलो, अच्छी तैयारी पहले से करके आए, उसके हिसाब से बोलो। सबको टेलीप्रॉम्प्टर नहीं मिलेगा, है ना। एवरीबडी इज नॉट सो लकी एंड सो पावरफुल कि भाई उस सबको ये मिले। अच्छी तैयारी करके जाओ, पॉइंट्स बना के जाओ, साइड में रखो, जरूरत पड़ने पे देख लो। बाकी अब मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, बच्चों को बहुत अच्छी ट्रेनिंग मिली रही है। और एक बात याद रखना कि हम लाइफ में सक्सेसफुल सिर्फ पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के नॉलेज से नहीं होते, वो एसेंशियल है, वो भी ज़रूरी है, लेकिन सब्जेक्ट की नॉलेज एक पर्टिकुलर लेवल अचीव करने के लिए होती है, नौकरी दिलाने के लिए होती है कि हाँ यार चलो मैं बेर मिनिमम मैं अपना इतना ये कर लूँगा, है ना, घर मैनेज कर लूँगा, लग्जरियस लाइफ जी लूँगा। लेकिन पॉपुलर होना है और ऐसा काम करना है जो कि इम्पैक्टफुल हो, लार्जर ऑडियंस को इम्पैक्ट करे, उनकी लाइफ में चेंज लाए, तो वो तभी पॉसिबल है जब आपके अंदर कुछ बहुत विशेष स्पेशल अदर क्वालिटीज़ आपके अंदर होनी चाहिए। चलो तो मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। हेलो, अरे कहाँ गाना गाएंगे यार, क्या हुआ, सुनना है गाना? हेलो, और तो उसके साथ ही गाएंगे। मेरे को एक ही गाने बहुत सारे आते हैं, लेकिन मेरे को लगता है एक ही गाना सबसे अच्छा है, गाना बड़ा कोई अपना स्टैंडर्ड गाना। हेलो, अभी जिस IIT मद्रास में मैं घर के सेंट्रल लेक्चर थिएटर से भाग गया था, उसी IIT मद्रास ने अभी 62 साल हो गए IIT मद्रास को चलते हुए, 62 साल की हिस्ट्री है। और 62 साल में लगभग 50,000 बच्चे वहाँ से IIT बने। कहाँ से? IIT मद्रास से। मैं भी वहीं से पढ़ा हूँ। अभी
उन 50,000 लोगों में से 18 लोगों को उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि जिन्होंने अपना काम शुरू किया, एंटरप्रेन्योर बने और ऐसे काम किए जिससे कि इम्पैक्टफुल काम हो, लोगों की लाइफ में चेंजेस आए। उन 18 लोगों में से मतलब मुझे खुशी है इस बात की कि उन 18 लोगों में से मुझे भी स्थान मिला और वो जो स्थान मिला है उस स्थान का पूरा क्रेडिट स्टूडेंट्स को जाता है, क्योंकि उन स्टूडेंट्स ने उसकी वजह से मुझे ये एक तरह से रिकॉग्निशन मिला कि भाई ये भी 18 में से एक है। तो वो स्टूडेंट की जो सफलता है उन्हीं की वजह से ये कहीं ना कहीं जगह मिली है। हेलो, हाँ करो, हेलो, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाना। पता नहीं कितने बच्चों ने सुन रखा है पहले गाना मेरे से, रुक जाना नहीं तो कहीं हार के, ये वाला गाना बहुत ही अच्छा गाना है, बहुत शानदार है। अच्छा, लेकिन मैं तो इसको करीब 200-300 बार गा चुका हूँ, फिर भी मुझे जब भी गाता हूँ ऐसा लगता है कि पहली बार गा रहा हूँ, मतलब ऐसा बोरियत महसूस नहीं होती है। मैंने प्रोग्राम हाईजैक तो नहीं कर लिया? बच्चों को लग रहा होगा कि यार हमारा नंबर नहीं आ रहा है। ये सारे बच्चे बोलेंगे अच्छा कुछ सुनने के लिए आए, कुछ सुनाने के लिए आए। पता नहीं मेरे अगर वो डर नहीं होता ना बोलने का, हो सकता है मैं तो टीचर बनता ना रेजोनेंस बनता। और डर को दूर करने के चक्कर में इतनी सारी चीजें, पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। नीलेश सर मुझे मोपेड पे बिठा के ले जाते थे। मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में लेक्चरर था उसी टाइम पे 95 में, तो मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती थी। ये नीलेश सर इंजीनियरिंग कॉलेज कोटा में स्टूडेंट थे और ये मुझे अपनी मोपेड में पीछे बिठा के ले जाते थे और वहाँ ये क्लास में बैठते थे। ही वाज माय स्टूडेंट इन इंजीनियरिंग कॉलेज कोटा। तो जब ये बीटेक कर रहे थे इंजीनियरिंग कॉलेज से, तो यहाँ तो इनके मकान के पास ही में रहता था किराए का मकान लेके, तो मोपेड में बैठ के जाते थे और वहाँ ही वाज स्टूडेंट इन द क्लास, मैं पढ़ा था। हेलो, हाँ करो ना। हेलो, इस गाने को बच्चे यहाँ से जाने के बाद भी याद करते हैं। पढ़ के चले गए, आईआईटी में चले गए, मतलब नौकरी कर रहे हैं, फिर भी सुनते हैं और बोलते हैं। वॉल्यूम तो बहुत कम लग रहा है म्यूजिक का भी, इस माइक का तो बढ़ गया थोड़ा सा। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों से चल के मिले मिसाए बहार के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिले मिसाए बहार के।
नीचे बैठ के खींचना ना सर के पीछे, नीचे बैठ के खींचना सर के पीछे बैठ के आगे आ जाओ। अभी मैं थोड़े दिन पहले यूएस गया था और 72 आवर्स में मैं यूएस जाके आया था। हाँ 20 घंटे तो जाने में लगते हैं, 20 घंटे जाने के 20 घंटे आने के 40 और 30 घंटे में वहाँ रुका था। और उसमें अपने पीसीसीपी के एक बहुत ही होनहार स्टूडेंट से भी मिल के आया था। मैं बोस्टन गया था और बोस्टन में शायद पता होगा MIT है। मैं इसलिए एग्जांपल ले रहा हूँ कि पीसीसीपी वाले बच्चों को बार बार ये याद दिलाया जाए कि बच्चे इतनी छोटी सी शुरुआत से कहाँ पहुँच सकते हैं। पवन वहाँ पे पढ़ता है, हालांकि पवन के साथ लय भी था, दोनों उसमें पढ़ते हैं। और मैंने उनको बोला था कि मैंने कि यार मैं तुम्हारे MIT के आसपास ही हूँ, आई एम कमिंग, और उनसे मिला भी था। पवन के साथ वो मैं फोटो भी खींच के लाया था, इसमें डाल के दिखा सकते हैं बच्चों को। बट बात ये है कि ये जो जूनियर डिवीजन है ये ठीक है, एक्सटेम्पो और बाकी बहुत सारी चीज़ें तुम लोगों को सिखाई जाएंगी, बट ये जो प्लेटफॉर्म है ना, ये प्लेटफॉर्म छोटा प्लेटफॉर्म नहीं है, ये इतना इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म है कि वर्ल्ड की सबसे टॉप यूनिवर्सिटी, तब IITs अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ होती है, वहाँ तो पहुँचा ही सकते हैं। मेडिकल के जितने भी अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं वहाँ पहुँचा सकते हैं, लेकिन जो दुनिया में नंबर 1 कॉलेज है वहाँ भी पहुँचाने की ताकत इस पढ़ाई के अंदर है। MIT वर्ल्ड का नंबर 1 इंस्टीट्यूट है, और जब अपना बच्चा, अपना पढ़ा हुआ बच्चा वहाँ पे पढ़ता है तो उसकी एक अलग ही बात होती है, बहुत अलग फीलिंग होती है। और एग्जैक्ट अभी जब दिखाऊँ स्टूडेंट के साथ का फोटो था तो एक अलग ही फीलिंग थी। मैं चाहता हूँ कि आने वाले टाइम में आज से जो भी अभी बच्चे यहाँ शायद 5वीं से 8वीं तक के बच्चे हैं, 8वीं वाले बच्चा है तो वो लगभग उसको कितने 4 साल 5 साल लगेंगे 12th तक आके फिर एग्ज़ाम देने में। मैं चाहता हूँ कि आज से 5 साल के बाद भी, हालांकि बीच में और भी बच्चे हैं जो जाएंगे ही सही, बट जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं उन बच्चों का भी टारगेट ये होना चाहिए
कि हम अच्छे से पढ़ाई करें, मन लगा के पढ़ाई करें, और जो पढ़ाई के अलावा बाकी एक्टिविटीज़ है उनमें भी पार्टिसिपेट करें। कभी भी दूसरी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने से पढ़ाई का नुकसान नहीं होता है। ये एक तरह से माइंड फ्रेश एक्टिविटी है ना, उस तरह से इसको लेना चाहिए। पढ़ाई पे अपना पूरा फोकस होना चाहिए और सिस्टमेटिक, मतलब किसी भी बड़ी चीज़ को हासिल करने के लिए कोई सुपर ब्रेनी होना जरूरी नहीं होता है। आपके अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए, अपने काम के प्रति ईमानदारी होनी चाहिए, टाइम का सदुपयोग होना चाहिए। अभी वर्तमान में जब बच्चों के हाथ में इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं, है ना, ये ऑनलाइन के नाम पे सब बच्चों के पास, अभी किसी के पास लैपटॉप होगा, किसी के पास टैबलेट होगा, किसी के पास मोबाइल होगा, स्मार्टफोन होगा। पहले हम कहते थे स्मार्टफोन नहीं रखना है, छोटा सा फोन रखना है जिससे केवल बात हो सकती है, SMS हो सकता है, लेकिन अब मना नहीं कर सकते अब तो, क्योंकि सारी एक्टिविटी चलती है। लेकिन उसका सदुपयोग होना चाहिए, दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। मोबाइल के अंदर और स्मार्टफोन के अंदर, टैबलेट के अंदर, लैपटॉप के अंदर इतनी सारी चीज़ें हो सकती हैं कि आपको 24 घंटे भी कम पड़े। मतलब अगर आपको टाइम बर्बाद करना है तो लोगों ने पैसे कमाने के लिए इतनी सारी चीज़ें बना रखी हैं कि आपको दिन भर एंगेज करके रखेंगे और आपको मजा आएगा, आपको इंटरेस्ट आएगा, आप छोड़ोगे नहीं उस चीज़ को। और आपको कोई आगे कहेगा कि इसको छोड़ दे तो उसको डांट भी सकते, उसको मतलब लड़ भी सकते हो उससे। तो ये अपने आप को कंट्रोल रखना है, और ये कंट्रोल रखोगे तो ऐसी जगह पहुंच सकते हो जहाँ पे हो सकता है आपने खुद भी इमेजिन नहीं किया हो, आपके घर वालों ने इमेजिन नहीं किया हो, आपके से जुड़े हुए किसी भी व्यक्ति ने उस चीज़ को सोचा भी नहीं होगा कि यार ये बच्चा हमारे सामने जो इधर उधर खेलता फिरता रहता है, ऐसे घूमता फिरता रहता है, ये ऐसी जगह पहुंच सकता है। एंड सिर्फ पहुंचना ही नहीं, वहाँ पहुंचने के बाद इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन समाज के उत्थान के लिए, देश के उत्थान के लिए अच्छी इतनी चीज़ें कर सकते हो कि जिसको सारी दुनिया याद रखेगी, सलाम करेगी और रिकॉग्नाइज भी करेगी, और पैसे भी कमाओगे, सब चीज़ें होंगी। तो मूल बात यह है कि जो मौका सब लोगों को मिल रहा है ना, इस मौके को छोटा नहीं समझे। ये नहीं समझे कि मैं 5वीं क्लास में हूँ, ये नहीं समझे कि मैं 6वीं क्लास में हूँ, ये नहीं समझे कि मैं 7वीं क्लास में हूँ। ये इतनी बड़ी उड़ान की शुरुआत है, इतने बड़े मुकाम पे पहुँचने की शुरुआत है कि वो इमेजिन नहीं कर सकते। मेरा यही, मुझे नीलेश सर ने इधर बुलाया, मुझे बड़ा अच्छा भी लगा बच्चों को देख देख के, और बस खूब पढ़ाई करें और जितनी भी एक्टिविटीज़ यहाँ पे होती हैं उन एक्टिविटीज़ का आनंद लें और उसमें भी अपने आप को प्रवीण बनाएं, क्योंकि पता नहीं होता है कि फ्यूचर में क्या बनोगे। मैंने IT से बीटेक की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में, लेकिन आज मैं इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई काम नहीं कर रहा हूँ। बट भगवान ने मेरे को ऐसा मौका दिया, ऐसा काम में डाला कि मैं तो एक इंजीनियर हूँ, लेकिन हम लाखों की संख्या में इंजीनियर्स यहाँ से इंजीनियर बनने के लिए उनको तैयार करके भेज रहे हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट। खींचो फोटो की जाना है, खींच लो, पीछे जाना ही और यही ठीक है, और जाओ। अच्छा मैंने भी MIT का तो एग्जांपल लिया, बट बच्चे यहाँ पढ़ कर के ना उनको इतना कॉन्फिडेंस, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। मतलब खाली ज्ञान नहीं बढ़ता है, कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है। अभी बच्चों को यहाँ बुला करके ट्रेनिंग दी जा रही है, इसका मकसद केवल एक्सटेम्पोर सिखाना नहीं है, इसका मकसद है कॉन्फिडेंस बढ़ाना। इतना कॉन्फिडेंस बच्चों का बढ़ता है कि वो किसी भी तरह के कैरियर में जाने के रिस्क लेने के लिए तैयार होते हैं। आप लोगों को पता है कोटा फैक्ट्री का नाम सुना है? जो उसमें हीरो था उसका नाम क्या है? जीतू है ना, वो अपने रेजोनेंस का स्टूडेंट है। कितने बच्चों को पता है बात? ही इज अ रेजोनेंस स्टूडेंट, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट, एंड ही इज नाउ रिकॉग्नाइज्ड एक्टर। अलवर, ही इज फ्रॉम अलवर और अपने J2 वाली बिल्डिंग में पढ़ा हुआ है। तो बच्चे जो निकल के जाते हैं ना, यहाँ से जाते हैं IIT, वो IIT खड़गपुर से है। IIT से निकलने के बाद में इतना मतलब कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई होता है कि कुछ भी चीज़ लेने की रिस्क ले सकते हैं। चलो फिर कभी मिलेंगे और दूसरे और कई स्टोरी सुनाएंगे, बहुत सारी चीज़ें शेयर करेंगे। बाद में बात के लिए भी तो रखेंगे ना कुछ।
बोलने के लिए, ठीक है? चलो तुम पढ़ो, मस्त रहो और खुश रहो। नीचे करो बेटा पर। Thank you, sir. Thank you. So with this, I think there are a lot of extra courses which are still left. So from class 5th, we have Yugansh, and his topic is home. फुल फ्रेंड ले लेना भाई, ये लो, ठीक है, देख लो, बढ़िया, देख ले। My respected hostess and all my classmates, I am going to represent a essay on home. Home is a beautiful place. We play in it, and there has many rooms in it. It has a beautiful garden that has many plants. It is very big. It looks like a palace. And home protect us from heat, storm, wild animals, etc. Next, we have Nishita, and her topic is chocolates. Good morning everyone. My name is Nishita Sharma. I am from 5th class UM1 batch. My topic is chocolates. Chocolates are made from milk, sugar and coffee beans. But these use a large quantity to make chocolate. Some of the chocolates are dairy milk. Dairy milk is made from milk and chocolate, 5-star, etc. Dark chocolate is bad. But if we use dark chocolate in some recipes, dark chocolate tastes well and recipes also taste well. Dark chocolate is made from coffee beans. Example, dark chocolate of Amul. Some fruits are also added to chocolates like Ferrero Rocher, Snickers, etc. Most of the children love chocolate and I think some adults also. Thank you. So next we have Akriti, and her topic is resonance. Good morning.
WM1 batch. Today's my topic is resonance. I love resonance. Resonance is an institute. There are so many teachers for our doubts. There is also doubt counter to clear our doubts easily. There is very big playground to play, and there are so many indoor outdoor games like chess, carom, tennis, badminton, and basketball, etc. The founder of Resonance is R.K. Verma sir. Thank you. So from class 7th, we have Naveen, and his topic is our city Kota. Good morning, honorable judges, respected teachers, and my dear friends. My name is Naveen. I am studying 7th class WM1 batch. Now I am going to speak about our city Kota. We all know that Kota is in Rajasthan. Many students come to Kota to study here, and some of the people come here for jobs. And here there are many temples found here. Many of the temples are temples of Shiv, temple of Vishnu, temple of Durga, temple of Krishna and Radha. And the favorite snacks in Kota is chole, and the 7 wonder parks is there in the Kota. In the ancient times, the Gurjara Pratiharas ruled in the parts of the Rajasthan and in the Kota. After independence, our Indian people have built dams, good schools, good roads, hospitals, temples, etc. and many institutions in Kota. And in Kota, there are many famous coaching institutes such as Resonance. Resonance have good teacher, it has good infrastructure, and with door session. They conduct fun activity like Edufranzania and summer workshop. Thank you. कोटा में और बहुत सारी चीजें फेमस है इसके अलावा किस किस ने खाई है कोटा की कचौरी अच्छी लगती है प्याज वाली कचौरी किसने खाई है और क्या फेमस है बताया कोटा स्टोन एंड कोटा साड़ी कोटा स्टोन और कोटा डोरिया रेजोनेंस तो है Okay, from class 8, we have Samriddhi, and her topic is the visit to a fair. Good morning to judges and my fellow friends. My name is Samriddhi Goyal and I am studying in class 8, ZM1 batch. My today's topic is a visit to a fair. A visit to a fair is a great fun having there. Parents and kids have fun many times. At festivals of Dashera, Ganesh Chaturthi, we have to see festivals or monthly fairs which we have. In most of them, we have trampolines. Now I am a teenager, but having fun on trampolines is just of kids having fun. And the greatest fun we have is the candy floss. We all eat candy floss right now too,
But the great fun we have make elders and us like teenagers make us kids for a moment once again. In like visiting a fair, we just have not to become a kid, but we have fun in gun shooting. My gun shooting is not that good because my aim is not good. But there's a quote that a failure leads to a good success. Thank you. Next, Twinkle, and her topic is manners matter the most. Good morning everyone. My name is Twinkle Sharma from class 8 batch ZM1. Now I am going to describe that manners matter the most. Now the manners are the form of etiquette that everyone should have. They tell us that how disciplined are we. If a person who do not have manners, no one would like to be with him. And no one would like to make friend with him. No one likes him, no one would respect him. Now if we go anywhere, then we didn't behave ourselves, then everyone thinks that his or her person didn't taught him manners. Then if we talk with manners with someone, either elders or anyone, then they also like our way of speaking, and then they also respect us. At last, I want to say that everyone should manners because everyone loves mannerful person and respect everyone. Thank you. Last from class 8, we have Ashutosh, and his topic is and after Ashutosh, Amrit from WM2. Be ready, beta. A very good afternoon to all my friends and respected teachers. My name is Ashutosh Jain from class 8 ZM1 batch. My topic is if I would be invisible. So basically if I would be invisible, so I would obviously prank my friends and tease them in every way. Or if I get in a fight with any of my friends, so I can spy on them that what they are talking about me. A walk at the middle of the ride would be so thrilling. I could do everything what I want. I can go in any shop and do whatever I want because no one would be able to see me and no one is going to complain about it. And at last, I will also try my best to I will try my best to control. I would try to help. Okay, so last we have Amrit, and his topic is our Prime Minister. Hello, my name is Amrit Pandey and my topic is our Prime Minister. So our currently Prime Minister is Narendra Modi. He is very old but his intelligence is very good. So he makes some mega projects to make our India modern and very good. Before he was Prime Minister, he has a tea stall in Gujarat where he sells teas. And also he was a Chief Minister in Gujarat for some years. He's not that much old, but I love him. Thank So this was the end of the
the activity. One of you will speak. You have to be confident and public speaking and what else did you learn from it? How to speak on a stage. Okay. So I hope to see many more new faces from next time, right? Yes. You people have to promise that you will work on your speaking skills. And you will participate more and more in such activities. Okay. मैम रिजल्ट्स रेडी हो गए हैं बस तो एक बार हमारी सुनीत मैम संगीता मैम और उनकी पूरी टीम और सारे टीचर्स की भी हम एक बार जोड़ा रहेंगे ready for results? So, हम सारे स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे Can we have all the participants of the Sudoku on the stage? Can we have all the participants of Sudoku on the stage? And जब वो आ रहे हैं तो सबसे ध्यान से लेते हुए ऊपर आए. All the participants of Sudoku. Okay. केशव गौतम. केशव ऊपर आइए. आप इसको पकड़ के खड़े रहिए. 11 बच्चों मिला. केशव गौतम. लक्ष्य साहू. ऋतुज मोरे, अन्वेषा पी साहू, ताली जाती रहेगी जंगल के हिसाब से. अक्षरा मीना, नितिका सिंह, भवियान सिंह, श्रद्धा राज, भव्यांश, श्रद्धा राज, ऋषभ राज, समृद्धि गर्ग, नवीन भी, समृद्धि गर्ग, नवीन भी, मीना राणा, अमृत पांडे, मोहित पारेदा, रंजन गुप्ता, ऋषि शर्मा, समृद्धि गोयल, ट्विंकल शर्मा, सत्यम किशोर, पीयूष नागर, आशुतोष जैन, सत्यम किशोर, पीयूष नागर, आशुतोष जैन, पहल जैन. So that's complete. आप लोग ग्रुप फोटोग्राफ के कैसे आएंगे? बच्चों को आगे बिठा दीजिए. एक एक्सटेम्पोररी स्पीच यहाँ पर भी होगी. सुडोकू से क्या फायदा मिला? और इसमें लर्निंग सुडोकू. अजी सर, आगे स्टेज पर सेंटर में आइए.
अभी शांति से नहीं बैठेंगे, इसके बाद क्लास भी लगा सकते हैं। विनर्स के रूप में अक्षिता मीणा, श्रद्धा राज, अभियान सिंह, रौनक कुमार, पीयूष नागर, अर्नव राणा, they are the final winners of the Sudoku competition. So let us start with Yes, boys, don't talk. Okay, so we have we had a category 5th 6th वाला common category था, 7th 8th वाला common category था. So 5th 6th category में third position is secured by the Bhavyan Singh. Second position in 5th 6th category is Shraddha Raj. Second position. And the first position in the 5th 6th category goes to Akshita Meena. First position. ताली नहीं बजा रहे आप लोग? Now let's come to the 7th and 8th category, and that third position goes to the Arnav Rana of 7th class. And the second position goes to Piyush Nagar. And the first position goes to Raunak Kumar. That's it. Lift your salute to sound like this. Okay. Thank you. All the best. Okay, now we have the. Ma'am, these are the all participant certificates. So can we have the all participants of Extrocor lined up here? Can we have all the participants lined up here? Lined up here.
आशीष साहू, युगांश, युगांश, आकृति दुबे, निशिता शर्मा, लवण्य साहू, आशुतोष, हिमांशु, क्लास 8 Z1 बैच, ईशान, पार्थ 8th class Z1 बैच, ट्विंकल 8th Z1 बैच, समृद्धि 8th Z1 बैच, अरुण्य 8th Z1 बैच, प्रणव वर्मा 6 BM1, शुभांग जैन 6 BM1, प्रियांश पीयूष राज 6 BM1, पीयूष राज, अपूर्वा सैनी 6 BM1, श्रद्धा राज 6 BM1, 8th Z2, आशु कुमार राठौर 8th Z2, निशिता प्रकाशन 8th Z1, Z2, राग 8th Z2, सानिध्य 8th Z2, तोरण्य लखानी 7 WM1, अमृत पांडे 7 WM2, नवीन वी 7 WM1, रुद्र प्रकाश सिन्हा 7 WM1, शुभी शर्मा 7 WM1, मानस, शशि प्रताप नायडू, आदित्य जोशी, मैम फाइनल लिस्ट हेलो गार्गी मैम निशिता लावण्य स्टे हियर क्लास 6 से अपूर्णा एंड श्रद्धा स्टे हियर क्लास 7 से नवीन एंड शुभी स्टे हियर क्लास 8 से ट्विंकल एंड समृद्धि स्टे हियर ओके now we'll give you the certificates. Okay, so class 12 the second position goes to Lavanya. Ma'am, second position goes to Lavanya. It was Nishita, class 12 first position. एक बार जोरदार ताली बजाइए. Class 6
क्लास 7 में सेकंड पोजीशन गोज टू शुभी एंड द फर्स्ट पोजीशन गोज टू नवीन. क्लास 8 second position Twinkle and the first position goes to Samriddhi. Can we have a quick once again entire department on the stage? Can we bring this department on the stage? I'll request teachers to join बच्चों को साथ लेके जाएंगे. सुप्रीम मैम फाइनल वर्ड्स फ्रॉम योर साइड. एक बार सुप्रीम मैम के लिए जोरदार ताली बजाएं. So like your claps will tell us how much you liked it. So I hope you people are going with the learning from here, right? And I would really like to see more participations in various activities which will be conducted very soon for you. Anybody who wants to say something or should we end it? कोई बोलना चाहता है अपना experience थोड़ा सा? It was good. It was very good. Okay. Excellent. Okay. Okay. So many adjectives are here. Right? चलो ठीक है. Thank you बेटा.